ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ એનર્ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਮੇਕ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਐਂਡ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਟੂਵਰਡਸ ਯੂ। ਸੋ I suggest you to please watch the video from the beginning till the end so that this will be very helpful for you. You can also feedback us in the comment box so that we can make some corrections and improvements. So without any delay, let's get start our class today. इसी की बात करने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा है कि आज मैं वाजे की कीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक लगाओगे तभी समझ आएगा। बीच बीच में अगर स्किप कर दोगे तो फिर कोई ना कोई की छूट जाएगी, तो स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक लगाना और पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। पेन कॉपी में साथ साथ नोट करोगे तभी आपको समझ आएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। आनंद बाणी संगीत अकेडमी 1469 ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਜਰਾ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਜਰਾ ਕੋਰਸ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕੋਰਸ ਆਪ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਬਟਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने भी हाले तक चैनल को सब्सक्राइब किया कर लो तो नाल दे नाल वीडियो को जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें। आनंद बाणी संगीत अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है जी। मेरा नाम सतनाम सिंह गुरप्रीत है और आज से हम लोग वाजे का कोर्स शुरू करने वाले हैं। जिन्होंने भी हारमोनियम सीखना है जी वो चैनल में ज्वाइन बटन में जाके आप कंप्लीट कीर्तन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, राइट, ठीक है। और उसी में ही हम आगे आने वाले समय में क्लासेस देने वाले हैं जी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब वीडियोस को तैयार करने में, कोर्स तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है जी, बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट लगते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपको 3 लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की जा रही है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में, ठीक है। तो जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको वो चीज़ें भी याद रहेगी। जब बार बार चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको वो माइंड में रहेगा और आपको वो याद भी रहने वाला है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर ले कोर्स को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें आपका सपोर्ट करते हैं। वाणी संगीत अकेडमी वेलकम्स यू ऑल। Myself Satnam Singh Gurpreet. From today we are going to starting our harmonium course, and if you have not joined our course yet then you can simply click to join button and join Kirtan, complete Kirtan course from there. And if you have not subscribed our channel yet then please subscribe our channel, and because it takes lot of efforts to make tutorials and to deliver the knowledge towards you, so I suggest you to please watch the video from the beginning till the end so that this will be very helpful for you. You can also feedback us in the comment box so that we can make some corrections and improvements. So without any delay, let's get start our class today. ਸੋ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਵਰ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਦੀ ਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜੇ ਦੇ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਕੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆएगा। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ नोटेशंस ਤੁਹਾਨੂੰ शो हो रही है, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ नोट भी करते चलो। आज जो हम वाजे में सीखने वाले हैं जी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है जी, क्योंकि सबको पता होनी चाहिए। पता किसी को नहीं होती है पर लेकिन सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हारमोनियम बजा तो लेते हैं पर लेकिन हमें ये नहीं पता होता ये वाइट बटन को क्या कहते हैं, ब्लैक बटन क्या होता है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो ओवरऑल आज मैं इसी की बात करने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा है कि आज मैं वाजे की कीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक लगाओगे तभी समझ आएगा। बीच बीच में अगर स्किप कर दोगे तो फिर कोई ना कोई की छूट जाएगी, तो स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक लगाना और पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। पेन कॉपी में साथ साथ नोट करोगे तभी आपको समझ आएगा जी, ठीक है जी। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द कीज ऑफ हारमोनियम, वाइट कीज, ब्लैक की, व्हाट वी कॉल वाइट कीज, व्हाट we call black keys, because before playing we should know about each and every key of the harmonium. So this video is gonna very important for everyone, so don't skip in between and keep watching from the starting to till the end. Attend whole class very sincerely with notebook and pen. So let's get start today's class.
विदाउट डिलेइंग। सो स्टार्ट करते हैं जी। वाजे विच जो तुसी कीज़ देख रहे हो इन्हां नूं स्वर कहंदे ने जी, ठीक है। इन्हां नूं की किया जाता है जी? स्वर। आप जो हारमोनियम में ये कीज़ देख रहे हो वाइट एंड ब्लैक, इन्हें स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर। द कीज़ ऑफ द हारमोनियम ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक विच यू आर सीइंग इन दिस इंस्ट्रूमेंट आर नोन एज स्वर्स ऑफ हारमोनियम। ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 12 ਹੀ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। फिलहाल इतना लिख लो कि वाद्य विच 12 स्वर होंगे ने, ठीक है। हारमोनियम में देखिए जी 12 स्वर होते हैं। अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे होंगे, पर वो आगे रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे, चलो मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, ये रिपीट हो रहा है ना जी। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस रिपीट हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि वाद्य में 12 स्वर होते हैं, और ये आप लिख लो फटाफट से। There are 12 swars in harmonium. You are looking so many keys here, but all the keys are repeated again and again, like 2 black keys, 3 black keys, 2 black keys, 3 black keys, 2 black keys, 3 black keys, है ना? Right? This way the keys are repeating itself. So the main keys in the harmonium, the main swars in the harmonium are only and only 12. ओके डन। चलो ना ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ 12 ਸਵਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 12 ਸਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। यानी कि 12 कीज़ 12 स्वर ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ नॉलेज ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ सारे स्वर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आज हम सीखने वाले उन 12 के 12 स्वरों के बारे में, उनकी नॉलेज लेने वाले हैं जी। अगर उनकी नॉलेज हमें मिल गई तो हम पूरे वाद्य के बारे में जान जाएंगे, हमें आगे के स्वरों के बारे में भी पता चल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू लर्निंग अबाउट ऑल 12 कीज़, ऑल 12 स्वर्स ऑफ द हारमोनियम। इफ़ वी लर्न अबाउट दैम वेरी सिंसियरली, देन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट अदर कीज़ ऑन दैट थर्मामीटर। ओके जी, सो क्लास की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला देखिए जी, वाद्य जो पहला बटन है जी, इस पहले सफ़ेद बटन को किया जाता है जी सी नैचुरल, ठीक है जी, सी नैचुरल। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲੈਕ ਬਟਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਲੈਕ ਬਟਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਪ ਨੂੰ ਹੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਜੀ हैश, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ डी फ्लैट भी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ठीक है जी। डी फ्लैट, फ्लैट की पहचान है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ स्मॉल बी ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ठीक है जी। जो ABCD वाला स्मॉल बी ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ डी फ्लैट करके, ठीक है जी। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, एक ਤਾਂ सी शार्प, दूजा डी फ्लैट। क्लियर हो गया। देखिए हारमोनियम में जो पहला सफ़ेद है इसे सी नेचुरल कहते हैं, और ये जो पहला ब्लैक आप देख रहे हो, पहला ब्लैक बटन देख रहे हो स्वर, इसे सी शार्प कहा जाता है। शार्प को हैशटैग से मेंशन किया जाता है, और साथ ही साथ में ये जो सी शार्प का स्वर है इसे डी फ्लैट भी कहते हैं, डी फ्लैट, ठीक है। फ्लैट को स्मॉल बी से मेंशन किया जाता है। तो इसके दो नाम हैं, पहला तो सी शार्प और दूसरा डी फ्लैट। क्लियर हो गया जी। फर्स्ट वाइट की ऑफ द हारमोनियम इज नोन एज सी नेचुरल स्वर, एंड फर्स्ट ब्लैक की ऑन द हारमोनियम इज नोन एज सी शार्प। शार्प इज इंडिकेटेड विद हैश, एंड दिस स्वर इज ऑल्सो नोन एज डी फ्लैट। फ्लैट इज इंडिकेटेड विद स्मॉल बी, राइट। सो दिस मच इज क्लियर टू यू। सी शार्प और डी फ्लैट। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਵਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਸਫੇਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੀ ਨੈਚੁਰਲ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡੀ ਨੈਚੁਰਲ। ਸੈਕੰਡ ਬਲੈਕ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਡੀ ਸ਼ਾਰਪ। ਡੀ ਸ਼ਾਰਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਈ ਫਲੈਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। क्लियर है। ਇਹਦੇ भी दो नाम ने, पहला नाम है डी शार्प, दूजा नाम है ई फ्लैट। अब देखिए जो हमारा सेकंड वाइट बटन है, सेकंड सफ़ेद बटन है वाजे का, ये जो सेकंड वाला सफ़ेद स्वर है इसे कहते हैं जी डी नेचुरल। और ये जो सेकंड ब्लैक स्वर आप देख रहे हो हारमोनियम वाजे में, इसे कहते हैं डी शार्प, और इसे एक नाम से और पुकारा जाता है, उसका नाम है ई फ्लैट, ठीक है। अगर कहीं पे ई फ्लैट लिखा हो तो समझ लो डी शार्प है, कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे आपने, ठीक है। सेकंड वाइट की इज़ नोन एज डी नेचुरल, एंड सेकंड ब्लैक की इज़ नोन एज डी शार्प। दिस स्वर इज ऑल्सो इंडिकेट विद ई फ्लैट, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, डी शार्प एंड ई फ्लैट इज द सेम स्वर विच इज सेकंड ब्लैक स्वर, ओके। नाउ मूव टू द थर्ड वन। ਹੁਣ ਹੈ ਜੋ ਤੀਜਾ ਸਫੇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈ ਨੈਚੁਰਲ। ਤੀਜਾ सफ़ेद ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ई नेचुरल। अब ये तीसरा सफ़ेद स्वर इसे कहते हैं जी ई नेचुरल। द थर्ड वाइट की इन द हारमोनियम इज नोन एज ई नेचुरल। मूव टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं जी।
थर्ड के बाद तुसीं देख लो थर्ड ब्लैक की इत्थे नहीं है, ठीक है। तो यानी कि थर्ड वाइट की तो बाद सीधा असीं आ जाएंगे चौथे सफ़ेद, यानी कि फोर्थ सफ़ेद स्वर ते ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ चौथा सफ़ेद स्वर है ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ एफ नैचुरल। की कहते हैं जी एफ नैचुरल, ठीक है जी। अब ये आप देख सकते हो भी जो हमने थर्ड स्वर बजाया था, थर्ड वाइट जो स्वर था सफ़ेद वाला, इसके बाद ब्लैक स्वर नहीं दिया गया यहाँ पर, है ना। तो सीधा हम लोग फोर्थ जो सफ़ेद स्वर है इस पे आएंगे और इस फोर्थ सफ़ेद स्वर को कहा जाता है एफ नैचुरल, ठीक है जी। क्लियर हो गया जी। नाउ यू आर लुकिंग हेयर when we were playing third white key E natural, then after that there is no black key mentioned, right? So we will move to the fourth white key which is F natural. Clear? This one is fourth white key F natural. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ fourth white key ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ third black key ਆਏਗੀ, third ਕਾਲਾ, ਤੀਜਾ ਕਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਏਗਾ ਜੀ एफ शार्प। की कहते हैं जी इनू एफ शार्प। ते एस नू जी फ्लैट भी किया जाता है। की कहते हैं जी फ्लैट। ਇਹਦੇ भी दो नाम ने, पहला नाम है एफ शार्प, दूजा नाम की है जी जी फ्लैट। एफ शार्प जी फ्लैट, ए दो ਇਹਦੇ नाम ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा तीसरा काला, ठीक है। यहाँ पे हमने चौथे सफ़ेद पे ख़त्म किया था, पर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तीसरा काला ही लिखेंगे। इसे कहते हैं तीसरा काला स्वर और इसको कहा जाता है एफ शार्प। क्या कहते हैं जी? एफ शार्प। और इसे जी फ्लैट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? जी फ्लैट। इस स्वर को जी फ्लैट भी कहते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड अवर थर्ड ब्लैक की विच इज एफ शार्प। दिस की इज ऑल्सो नोन एज, दिस स्वर इज ऑल्सो नोन एज जी फ्लैट, राइट। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸफ़ੇਦ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਜੀ ਨੈचुरल। अब ये जो पांचवा सफ़ेद है जी इसे जी नैचुरल कहा जाता है। द फिफ्थ वाइट की ऑफ द हारमोनियम इज नोन एज जी नैचुरल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। हुण ਜਿਹੜਾ चौथा काला है, चौथा काला, पहला दूजा तीजा चौथा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ चौथा काला है जी ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जी शार्प। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? जी शार्प। ਇਹਨੂੰ ए फ्लैट भी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ए फ्लैट भी किया जाता है, जी शार्प भी किया जाता है। ए फ्लैट जी शार्प। क्लियर हो गया जी? ठीक है। ये भी दो नाम ने, ए फ्लैट जी शार्प। अब ये जो चौथा काला है जी वाजे में, इसे जी शार्प भी कहा जाता है और ए फ्लैट भी कहा जाता है। इसके भी दो नाम हैं, पहला नाम है जी शार्प, दूसरा नाम है ए फ्लैट। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़े। क्लियर हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ ब्लैक की। दिस फोर्थ ब्लैक की इन द हारमोनियम इज नोन एज जी शार्प। It's also known as A flat स्वर of the harmonium। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਛੇਵਾਂ ਸਫ਼ੇਦ। ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਸਫ਼ੇਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ A natural। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? A natural। ये जो छेवां सफ़ेद वाजे में है इसे A natural कहा जाता है। इस स्वर को A natural कहा जाता है। द सिक्स्थ वाइट की ऑफ द हारमोनियम, द सिक्स्थ वाइट स्वर ऑन द हारमोनियम इज नोन एज ए नैचुरल। क्लीयर। अब हुण अगे बढ़ते हैं जी। पंजवां काला। पंजवें काले नूं की कहंदे ने जी? ए शार्प। की किया जाता है जी? ए शार्प। एस नूं बी फ्लैट भी कहंदे ने, बी, ठीक है। बी फ्लैट भी किया जाता है। ਇਹਦੇ भी दो नाम ने, पहला नाम है ए शार्प, दूजा नाम है जी बी फ्लैट। ध्यान रखना। अब ये जो पांचवा काला आप वाजे में देख रहे हो जी, इसे ए शार्प कहते हैं जी और इसका दूसरा नाम बी फ्लैट भी है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसे ए शार्प भी कहा जाता है, बी फ्लैट भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसके भी दो नाम है, ए शार्प, बी फ्लैट, राइट। द फिफ्थ ब्लैक की ऑफ द हारमोनियम इज नोन एज ए शार्प। दिस स्वर इज ऑल्सो इंडिकेटेड एज बी फ्लैट। सो अगे बढ़ते हैं जी। सतवां सफ़ेद, ठीक है। सतवें सफ़ेद नूं किया जाता है जी बी नैचुरल। की कहते हैं जी? बी नैचुरल। सतवें सफ़ेद स्वर नूं बी नैचुरल किया जाता है। ये जो वाजे में आप सातवां सफ़ेद स्वर देख रहे हैं इसे बी नैचुरल कहा जाता है। बी नैचुरल ये स्वर होता है जी, ठीक है। द सेवंथ वाइट की ऑन द हारमोनियम इज नोन एज बी नैचुरल। द सेवंथ स्वर ऑन द हारमोनियम, सेवंथ वाइट स्वर ऑन द हारमोनियम इज नोन एज बी नैचुरल, राइट। तुसी कैलकुलेट कर सकते हो जी
1 2 3 4 5 6 7 ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਸਵਰ ਵਜਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ सारे के सारे नैचुरल सीगे। किहड़े सी जी? नेचुरल। अभी जो हमने हारमोनियम में 7 स्वर बजाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 वाइट वाले स्वर सफ़ेद स्वर बजाए हैं ना जी, ये सभी के सभी नेचुरल थे। ठीक है, यानी कि वाजे में जितने भी नीचे वाले स्वर थे सफ़ेद वाले, सभी के सभी नेचुरल थे। वाइट कीज ऑन द हारमोनियम विच वी हैव प्लेड राइट नाउ, द 7 वाइट की, these all keys are known as the natural swars of the harmonium, right? These all are the natural swars, right? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਸਵਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। C D E F G A B, ਰਾਈਟ? ਇਹ 7 ਨੈਚੁਰਲ ਸਵਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? 7 ਨੈਚੁਰਲ ਸਵਰ ਤੇ ਪਲੱਸ 5 ਮਿਕਸ ਸਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਸਵਰ ਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬਲੈਕ ਬਟਨ 1 2 3 4 5, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਲੈਕ ਬਟਨ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਸਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। शार्प स्वर भी इन्होंने तुसी कह सकते हैगे हो, ठीक है, तो फ्लैट स्वर भी कह सकते हैगे हो। अब ये जो हारमोनियम में 5 स्वर हमारे ऊपर बचे हैं जी, इन्हें मिक्स स्वर कहा जाता है जी, मिश्रित स्वर कहा जाता है। इन्हें आप शार्प स्वर भी कह सकते हैं, फ्लैट स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है, इन्हीं का मिश्रित फॉर्म होता है ये, ठीक है जी। नाउ द ऑल 5 ब्लैक कीज आर नोन एज द फ्लैट कीज ऑफ द हारमोनियम और द शार्प कीज ऑन द हारमोनियम, राइट? इनके बारे में ਜਾਣ ਲੈਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ ਡੀ ਫਲੈਟ, ਦੂਜਾ ਬਲੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੀ ਸ਼ਾਰਪ ਈ ਫਲੈਟ, ਤੀਜਾ ਬਲੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਫ ਸ਼ਾਰਪ ਜੀ ਫਲੈਟ, ਚੌਥਾ ਬਲੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਏ ਫਲੈਟ, पंजवा ब्लैक कहते हैं जी ए शार्प बी फ्लैट। देखिए पहले जो ब्लैक है इसे कहा जाता है जी सी शार्प डी फ्लैट, दूसरे ब्लैक को कहा जाता है जी डी शार्प ई फ्लैट, तीसरे ब्लैक को कहा जाता है जी एफ शार्प जी फ्लैट, चौथे काले को कहते हैं जी जी शार्प ए फ्लैट, पांचवें काले को कहते हैं जी ए शार्प बी फ्लैट। फर्स्ट ब्लैक स्वर ऑन द हारमोनियम इज नोन एज सी शार्प डी फ्लैट, second black key on the harmonium is known as D sharp E flat, third black key on the harmonium is known as F sharp G flat, fourth black key on the harmonium is known as G sharp A flat, and the fifth key on the harmonium is known as A sharp B flat. Now 7 white keys plus 5 black keys equals to 12 keys. अब देखिए ध्यान से 7 सफ़ेद स्वर 5 ब्लैक स्वर काले स्वरों को मिला दो कितने बन जाते हैं जी 12 स्वर बन जाते हैं ना जी। ध्यान नाल इधर देखो 7 वाइट स्वर ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਸਵਰ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 12 ਸਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਸਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 12 ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਫੇਦ ਬਟਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਕਾਲੇ ਬਟਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, यानी कि फिर इत्थों दी सी डी ई एफ जी ए बी, फिर इत्थों दी शुरू हो जाएगा सी डी ई एफ जी ए बी। ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਫਿਰ ਡੀ, ਡੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਈ, ਐਫ, ਐਫ ਸ਼ਾਰਪ, ਜੀ, ਜੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਏ ਸ਼ਾਰਪ ਤੇ ਬੀ, है ना। सेम पोजीशन ਤੁਸੀਂ देख रहे हो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, यानी कि 3 ग्रुप में 12 स्वरों को वंड दिता गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 स्वरों के बारे में जब हम जान जाएंगे तो हमें सारे वाद्य के स्वरों के बारे में पता लग जाएगा। किस तरीके से पता लगेगा जी? अभी आपने देखा यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बजाया था सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी पे ख़त्म किया था। फिर आप यहाँ पे देखोगे सिमिलर पोजीशन शुरू हो गई, यहाँ पे एक वाइट, यहाँ पे 2 ब्लैक, यहाँ पे 2 ब्लैक, यहाँ पे फिर 2 वाइट, फिर 2 वाइट, फिर 3 ब्लैक, फिर 3 ब्लैक, तो वो चीज़ रिपीट हो गई, यानी कि फिर से वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, फिर आएगा आपका ए शार्प, फिर आ जाएगा बी, और फिर वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। यानी कि हमारे कुल स्वर जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं 3 ग्रुप के अंदर, तो 12 × 3 कर दिया जाए तो सारे के सारे वही स्वर हैं, वैसे ही रहेंगे। तो 12 स्वरों की नॉलेज हम लोगों ने ले ली, यानी कि हमें पूरे वाद्य की जितने भी बटन हैं सबकी नॉलेज मिल गई। नाउ लुक हेयर केयरफुली, एज आई टोल्ड यू व्हेन यू लर्न अबाउट 12 स्वर्स यू विल ऑटोमेटिकली लर्न अबाउट अदर स्वर्स इन द हारमोनियम। हाउ? लेट्स सी। एज वी हैव लर्न दैट
first note is C, then C sharp, D sharp, E, F sharp, then we were moving together G sharp, A sharp, then B. So all these notes are 12 in the counting, and we are moving further. Again we are seeing the similar thing repeating here. Similar swars are again, the form of swars are same: 2 black, 3 black, 2 black, 3 black. These all keys are repeating again. So there is no change in swar. We will be call them exact as we have learned from here. This is C, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, then B. Okay, now let's see in this form: C, D flat, D, then E flat, E, F, G flat, G, A flat, A, B flat, B. Right? All swars are similar, right? So there is no any change in them. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਜੇ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਾਜੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਦਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। तो कल की क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो कल की क्लास ज़रूर तुसी अटेंड करना, उन्होंने भी शुरू तो एंड तक, तो ये बहुत कुछ तुहानू सीखने मिलेगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी ओवरऑल हमने इसके बारे में जाना है जी, जो कि बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। और कल की क्लास तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कल हम जो सीखने वाले हैं ना जी, वो 12 तरीके से सारे गामा पाधानी किस तरीके से गाया जाता है हारमोनियम में, उसके बारे में मैं क्लास लेने वाला हूँ। तो कल की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप आगे कोर्स में बहुत कुछ सीखोगे, है ना। तो आप कोर्स को ज्वाइन कर लो फटाफट से, बहुत कुछ नया इसमें आपको सीखने को मिलने वाला है। So today we have learned about all keys in the harmonium. Now we were going to learn about the Indian rhythms, Saregama Pada Ni, on the harmonium in the 12 different forms, how we can play all together. So we were going to learning tomorrow class. So if you yet not joined our course, then I suggest you to join our course and we will meet in the class. तब तक के लिए सारे अपने प्रैक्टिस करो, सभी लोग अपना रियाज करो। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।